आई गैस तो नवंबर 24 की आईटीपी का दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. एमरो लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी ऑफ लेदर गुड्स since last 10 years. You are internal auditor of the company for the year ended 23-24. In order to review internal controls of the company, you visited the department and you have noticed the following. Head of procurement, yani purchases, Mr. Amit has complete control over purchasing received goods, approving the payments to supplier, and his actions are not reviewed by any other person in the company. Wow. The company staff has been working in same roles for over 5 years without any rotation. Finance manager, the Mr. Sachin in particular, has never had his duties rotated since he joined the company. Very good. तीसरा, the store manager, Mr. Gupta, who is responsible for maintaining the inventory, also keeps the inventory records. अब इतना पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ जाता है कि अपन इंटरनल ऑडिटर हैं और अपने को इतनी खामियां दिख रही हैं. हम बड़े खुश हो जाते हैं एकदम में कि वाओ क्या क्वेश्चन है, अब तो फोट डालेंगे. लेकिन इतने में फिर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? Briefly discuss the general condition pertaining to internal check system to be ensured by you as an auditor. And do you think that general condition pertaining to internal check system are violated in given situation? अब पहली बात तो अपने को वहां ये ध्यान आना चाहिए कि इंटरनल चेक क्या होता है. इंटरनल चेक इज अ प्रोसेस by which a task or an assignment is divided into various stages and each stage is performed by a different person, and when some person is performing his work at that stage, while performing his work also supervises, also reviews the work done by the predecessor. इट मीन्स मैं अकाउंटिंग की प्रोसेस को या कंट्रोल की प्रोसेस को इतने भागों में बांट दूं कि इतने भागों में बांट दूं मैं उसको कि काम करने वाला बंदा जो है जब अपना काम कर रहा हो तो वो दूसरे के काम को भी चेक करता जाए. स्टेप्स में बांटना. अब यहां तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ही नहीं है. यहां तो पहले केस में प्रोक्योरमेंट भी वही कर रहा है, गुड्स भी वही रिसीव कर रहा है, पेमेंट भी वही अप्रूव कर रहा है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटी है. दूसरे केस में रोटेशन ही नहीं हुआ है एम्प्लॉइज का, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं तब से बैठे हुए. तीसरे केस में जिसको तुमने इन्वेंट्री रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वही इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स भी रख रहे हैं. इट मींस कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर विद द सेम पर्सन. और ये तीनों तो इंटरनल चेक के खूबियों का वायलेशन ही है. पर उसने तो पूछ ही दिया, ब्रीफली डिस्कस द जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम. तो बता दो कि इंटरनल चेक सिस्टम में जो अपन ने पढ़ी है मॉड्यूल के अंदर दी हुई हैं ब्रीफिंग्स को अपन याद करते, मन नहीं जाता आंसर पे, कितनी याद आती. सर पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए. वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग्स द पर्संस. ये हमने देखा. ईच पर्सन व्हाइल परफॉर्मिंग हिज वर्क शुड reconfirm that the predecessor whether done or not. Then work should be properly supervised. Employee should be rotated. Employee should be forcefully sent on leave. याद करो. Employee should be forcefully sent on
leave. Their work should be supervised. Custodian responsibility and recording responsibilities should be segregated. ये कुछ बातें थी जो इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ी थी. तो पहला था नो सिंगल पर्सन शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल and his work should be reviewed by another person. Second, duties should be rotated from time to time. Staff should be encouraged to go on leave. Physical custody and recording responsibility should be divided. Accounting control should be there for each class of asset, whether it is inventory, whether it is fixed asset, whatever it is. Mechanical devices must be used while cash counting machines and all that they must be used. Budgetary control should be exercised. Okay, budgetary control will also be exercised. There are certain glimpses. What about these glimpses? These glimpses are about the internal check. Then inventory taking should be there. Periodic interval पे inventory की taking करें. Then financial and administration power अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए. And then you should lay down the procedure for periodic verification and testing in different accounting records and all that. ठीक है ना यार, एक मिनट, आपसे क्या पूछा उसने? इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में ब्रीफली डिस्कस करो. जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक. तो सर जनरल कंडीशन क्या क्या है? किसी भी एक बंदे के पास पूरा काम नहीं होगा, काम सबका सुपरवाइज होगा, ड्यूटी जो है वो रोटेट की जाएंगी, स्टाफ को लीव पे भेजा जाएगा, फिजिकल कस्टडी और रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों के लिए होंगी, अकाउंटिंग कंट्रोल हर एसेट के लिए होंगे, मैकेनिकल डिवाइसेस लाओ, बजटरी कंट्रोल लाओ, इन्वेंट्री की फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करो, रेगुलर इंटरवल पे करो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग अलग करो, प्रोसीजर लेट डाउन करो, इसमें पीरियोडिक वेरिफिकेशन इन्वॉल्व, मतलब इंटरनल ऑडिट टाइप का कुछ लेके आओ. अब बोलते हैं कि क्या तीनों जगह कोई गड़बड़ थी? बिल्कुल थी ना. Head of procurement Mr. Amit having complete control over procurement process without oversight, that is a violation of internal check. Lack of staff rotation is there over 5 years. ऊपर से एक आदमी तो जब से उसकी नौकरी लगी तब से गया ही नहीं, ये अलग एक वायलेशन है. मिस्टर गुप्ता स्टोर मैनेजर इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी रख रहा है और इन्वेंट्री की कस्टडी भी रख रहा है, तो भाई इसके यहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, इसका रोटेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, इसका कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बंदे के पास है, तो ये तीनों तो वायलेशन है इंटरनल चेक के. बताइए क्या था इस क्वेश्चन में? पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन था, पूछ लिया गया था, दे दिया जाना था जवाब. चलिए अगली बात करेंगे अगले लेक्चर में.